જય જીરેન્દ્ર. ઓમ નમો ર્યંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ નમો વચ્ચાયણમ નમો લોય સૌસાવણમ. મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમો ગણી મંગલમ કુંદ કુંદાર્યો જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ ચેવ ઓમકારાય નમો નમઃ. અહો ઉપકાર જિનવરનો કુંદનો ધ્વનિ દિવ્યનો જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા અહો આ ગુરુ કહાનનો તુચ્છ જ્ઞાન ધ્યાનનો રંગ અમયા દર્શ રહો ઓ શિવ પદ તક તુજ સંગ માતા હાથ ગ્રહ. આ સમયસાર નામનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે. ભગવત કુંદકુંદાચાર્ય દેવે પ્રથમ ગાથામાં માંગલિક કરીને સમયસારને કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે. બીજી ગાથામાં આચાર્ય ભગવંતે સમયનું સ્વરૂપ અને સમય બે પ્રકારે પરિણમી શકે છે, સ્વસમય અને પરસમય. તો બીજી ગાથામાં સમયનું સ્વરૂપ બતાવ્યું, સ્વસમયનું સ્વરૂપ બતાવ્યું, પરસમયનું સ્વરૂપ બતાવ્યું. ત્રીજી ગાથામાં આચાર્ય ભગવંતે એમ કહ્યું કે સમય તો એકત્વ નિશ્ચયને પ્રાપ્ત છે, એવો સમય તો વિશ્વમાં સુંદર છે, પણ જે પરમાં એકત્વ કરે છે તો જીવને બંધનની કથા શરૂ થાય છે. એ બંધનની કથા વિખવાદ ઉત્પન્ન કરે છે. બંધનની કથા જીવનું બુરું કરે છે. એ બંધનની કથા આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવથી વિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિ છે. એ વાત આચાર્ય ભગવંતે ત્રીજી ગાથામાં કરી. ચોથી ગાથામાં આચાર્ય ભગવંતે એમ કહ્યું કે જે આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ છે આત્માનું જે શુદ્ધ સ્વરૂપ છે એ અજ્ઞાનીઓને, અનાદિ મિથ્યા દ્રષ્ટિઓને અસુલભ છે. એટલે કે અજ્ઞાનીઓએ આત્માનું ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વરૂપ અનુભવમાં લીધું નથી, એનો પરિચય કર્યો નથી, એ સંબંધી કથા સાંભળી નથી,
તેવું આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ, એવું આત્માનું ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વરૂપ, જે અનંત ગુણાત્મક છે, અનંત ધર્માત્મક છે, અનંત શક્તિવાન પણ છે, એ અજ્ઞાનીને તો અસુલભ છે. તો કે અજ્ઞાનીને સુલભ શું છે? તો કે અજ્ઞાનીને તો કામ ભોગ બંધનની કથા, કામ કહેતા ઈચ્છા, ભોગ કહેતા ભોગવટો, એ કામ બંધનની કથા આત્માનું જે એકત્વ છે, આત્માનું જે શુદ્ધપણું છે, એનાથી વિરુદ્ધ પુણ્ય પાપના પરિણામ, શુભાશુભ પરિણામ, મોહ રાગ દ્વેષના પરિણામ, એનો અનુભવ, એની વાતો સાંભળવી, એનો પરિચય કરવો, એ અજ્ઞાનીને સુલભ છે. यहाँ સુધી આપણે આવ્યા છીએ. फिर से हिंदी में आचार्य भगवत ने प्रथम गाथा में मांगलिक करके समय सार को कहूँगा ऐसी प्रतिज्ञा की. दूसरी गाथा में समय सार में से समय शब्द, तो शिष्य ने प्रश्न किया कि हमें जिज्ञासा होती है, आकांक्षा होती है कि समय क्या है, समय का स्वरूप क्या है, समय किसको कहे. तो दूसरी गाथा में आचार्य भगवत ने समय का स्वरूप बताया. उसके साथ साथ समय दो प्रकार से परिणमन कर सकता है, स्वसमय और परसमय. तो दूसरी गाथा में आचार्य भगवत ने समय का स्वरूप बताया, स्वसमय का स्वरूप बताया, परसमय का स्वरूप बताया. तीसरी गाथा में आचार्य भगवत ने कहा कि जीव परसमय रूप परिणमन करता है तो पर पदार्थ में हूंपना और राग द्वेष उत्पन्न करता है. पर पदार्थ में हूंपना करने से, राग द्वेष करने से कर्म का बंधन होता है. तो ये परसमयी प्रवृत्ति है, वो विषमवाद खड़ा करती है. वो परसमयी प्रवृत्ति स्वभाव से विरुद्ध प्रकार की प्रवृत्ति है. वो प्रवृत्ति जीव का अनिष्ट करने वाली है. चौथी गाथा में आचार्य भगवत ने कहा कि अज्ञानी उसको आत्मा का शुद्ध स्वभाव,
असुलभ है। कैसा है? तो कि असुलभ है। तो जो आत्मा का स्वभाव असुलभ है उसका अर्थ क्या? तो कि आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का अज्ञानी ने कभी परिचय किया नहीं, कभी उसकी कथा सुनी नहीं, कभी उसका स्वरूप समझा नहीं, कभी उसका अनुभव किया नहीं। अनादि से आज तक अज्ञानी ने आत्म स्वभाव का परिचय नहीं किया, आत्मा के स्वरूप की कथा नहीं सुनी, आत्मा के स्वरूप का अनुभवन नहीं हुआ। तो आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वो वास्तव में परिचय करने जैसा है, उसकी कथा सुनने जैसी है, उसका अनुभवन करने जैसा है। तो अज्ञानी ने आत्मा के त्रिकाल शुद्ध स्वभाव का परिचय नहीं किया है, कथा नहीं सुनी, अनुभव नहीं किया। तो अज्ञानी को क्या सुलभ है? अज्ञानी ने किसकी बात सुनी है, किसकी कथा सुनी है, किसका अनुभव किया है? तो कि अज्ञानी ने काम भोग बंधन की कथा यानी परसमयपना उसकी बात सुनी है, उसकी कथा सुनी है, उसका अनुभवन किया है। अब देखो चौथी गाथा की टीका। प्रथम गुजराती में चलेगा, उसके बाद में हिंदी में फिर से लेंगे। टीका। आ समस्त जीवलोक ने લોકાકાશમાં રહેતા સમસ્ત જીવો એકેન્દ્રી, બેન્દ્રી, ત્રણેન્દ્રી, ચારેન્દ્રી, પંચેન્દ્રી, અસંગની, સંગની, નિગૂઢના જીવો, તિર્યંચના જીવો, નારકીના જીવો, મનુષ્યના જીવો, દેવલોકના જીવો, બધા અજ્ઞાનીની વાત ચાલે છે। આ સમસ્ત ભવ્ય ભવી સમસ્ત જીવો કામ ભોગ સંબંધી કથા, કામ કહેતા શુભાશુભ ભાવ અને એના ફળ, એને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા, કામ કહેતા ઈચ્છા, વાંછા, આકાંક્ષા, ઈચ્છા મોટી ખાઈ છે, ગમે તેટલું અંદર નાખો, સ્વાહા। ગામડામાંથી શહેરમાં આવે તો ઈચ્છા એટલી જ હોય કે રોટલો મળે એવી નોકરી મળી જાય અને એક રૂમ ભાડે મળી જાય
તો આપણે તો ઘણું. એમાંથી લાખો કરોડ રૂપિયા બને તો પણ શાંતિથી બેસી ન શકે. આખા વિશ્વના તમામ પૂતગલો મળી જાય તો પણ જીવની ઈચ્છા પૂર્ણ ન થાય. અહીંયા કંઈક ઓછું પડતું હોય તો હજી એને ચંદ્રલોકમાં જવું છે. ઈચ્છા, વિશ્વના પદાર્થોને મેળવવાની ઈચ્છા, સત્તા મેળવવાની ઈચ્છા, માનપાન મેળવવાની ઈચ્છા, ઈચ્છાના પ્રકાર અનંત. એને કામ કીધું. ભોગ, 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોનો ભોગવટો, શુભાશુભ ભાવનો ભોગવટો, આશ્રવબંધ ભાવનો ભોગવટો, ક્રોધ, માન, માયા, લોભનો ભોગવટો, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, ભય, જુગુપ્સા એનો ભોગવટો, સ્ત્રી આદિનો ભોગવટો, મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કસાઈ, યોગનો ભોગવટો, ઈચ્છા અને ભોગવટો અનાદિકાળથી પરના લક્ષે એકેન્દ્રીયથી માંડીને પંચેન્દ્રિય સંઘની અજ્ઞાની જીવો કરે છે. કામ ભોગ સંબંધી કથા. આ કથા કેવી છે? એકપણાથી વિરુદ્ધ. આ કામ ભોગ બંધનની કથાથી રહિત તારો એકરૂપ ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ છે. એ સ્વભાવ શુદ્ધ, કામભોગ બંધનની કથા અશુદ્ધ. તારો ત્રિકાળ સ્વભાવ એકરૂપ, કામભોગ બંધનની કથા અનેકરૂપ. સ્વભાવ ત્રણેય કાળ એવો ને એવો, કામભોગ બંધનની કથા એની તીવ્રતા મંદતા અનંત પ્રકારની. તારો ધ્રુવ સ્વભાવ એકરૂપ, કામભોગ બંધનની કથા ઉત્પાદવી વાળી. એકપણાથી વિરુદ્ધ હોવાથી, આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવથી કામભોગ બંધન કથા વિરુદ્ધ હોવાથી અત્યંત વિસંવાદી છે, અત્યંત બુરું કરનારી છે. અત્યંત બુરું કહેતા ચાર ગતિમાં પરિભ્રમણ કરનારી છે, અનંત સંસારને ઉત્પન્ન કરનારી છે, અત્યંત દુઃખદાયક ભાવ છે. એ અશુદ્ધ પરિણામ આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવને તિરોભૂત કરનારા, અત્યંત બુરું કરનારા છે.
તો પણ આ કામભોગ બંધનની કથા વિસંવાદ ઉત્પન્ન કરે છે, બુરું કરનારી છે, દુઃખદાયક છે, તો પણ પૂર્વે અનંતવાર સાંભળવામાં આવી છે, તો પણ એને સાંભળવી ગમે છે. અરે, અમે સિંગાપુર ફરવા ગયા હતા. એક વખત તો જોવા જેવું છો. આવી વાતો અનંતવાર સાંભળી. પર પદાર્થ, એની ઈચ્છા ને એનો ભોગવટો. અહીંના સમોસા વખણાય છે, ખાવા જેવા છે. ભોગવટાની કથા. પર પદાર્થ પ્રત્યે પર પદાર્થને ભોગવી શકતો તો નથી, પણ આવા મોહરાગ દ્વેષ પોતાની સત્તામાં ઉત્પન્ન થાય છે. પર સમયપણું એ મોહરાગ દ્વેષ બુરું કરનારું છે, અનંત સંસારનું કારણ છે, દુઃખદાયક છે. આવો અનંત કાળ ગયો છતાં પણ આપણને એમ લાગતું નથી કે આ મોહરાગ દ્વેષની કથા દુઃખદાયક છે. કે છે આ તો અત્યંત બુરું કરનારી છે, તો પણ પૂર્વે અનંતવાર સાંભળી છે. કોઈને એમ થાય કે એકેન્દ્રી જીવો ક્યાં સાંભળે છે. સાંભળતા નથી, પણ મોહરાગ દ્વેષને વેદે છે કે વેદતા નથી. મોહરાગ દ્વેષનું વેદન સાંભળવાની જરૂર ક્યાં છે. એકેન્દ્રી અજ્ઞાની મન વગરનો હિત અહિતનું વિચાર કરી શકે એટલું જ્ઞાન જેનું ખુલ્લું નથી, તીવ્ર ઘાતી કર્મોથી ઘેરાયેલો, તીવ્ર દુઃખને વેદનારો, દરેક સમયે તીવ્ર મોહરાગ દ્વેષના ઉદયમાં જોડાઈને તીવ્ર મોહરાગ દ્વેષને ભોગવીને દુઃખી થતો, નિગોદમાં અનંત કાળ કાઢ્યો. જીવ બે સ્થાને સૌથી વધારે રહે, કા નિગોદમાં ને કા સિદ્ધ પદમાં. અજ્ઞાની તો સૌથી વધુ કાળ નિત્ય નિગોદમાં રહ્યો છે. તીવ્ર મોહરાગ દ્વેષને વેદા, એ મોહરાગ દ્વેષના વેદનનો પરિચય કર્યો. એનો અનંત વખત પ્રતિ સમય અનુભવ કર્યો. કોની વાત ચાલે છે? અજ્ઞાની એટલે આપણે. फिर से हिंदी में क्या कहा? इस समस्त जीवलोक में समस्त जीवलोक, ऊर्ध्व मध्य ने पाताल लोक,
तीन लोक में अनंत जीव अज्ञानी रहते हैं। निगोद के जीव हो, प्रत्येक एक इंद्रिय हो, बे इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, पंचेंद्रिय असंगी हो, पंचेंद्रिय संगी हो, निगोद में रहने वाला तिर्यंज हो, के नारकी हो, के मनुष्य हो, के देव हो, ये समस्त अज्ञानी जीव अनादि काल के अज्ञानी है। ये अज्ञानी जीव ने काम भोग, काम कहता इच्छा, भोग का अर्थ है भोगवटा, पुद्गलों की इच्छा, जमीन मकान की इच्छा, सोना चांदी की इच्छा, बर्तन कपड़े की इच्छा, कपबोर्ड में कुछ समा नहीं सकता, फिर भी यहाँ सेल था, मैं लेके आई, अच्छा था, ये तो मेरे पास था ही नहीं, ऐसा कलर तो मेरे पास था ही नहीं, अभी ये नया आया है, कितना सस्ता है, ले लिया। पदार्थों की इच्छा, पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा, जमीन मकान हो, सोना चांदी हो, बर्तन कपड़े हो, धन धान्य हो, दास दासी हो, पांच इंद्रिय के विषय, स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुइंद्रिय, श्रोतेंद्रिय, उसके विषय का भोगवटा, ये चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो खाने में एक मेक हो जाता है, वस्तु को देखकर मुंह में पानी आता है, वास्तव में ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, पर पदार्थ का भोगवटा कर नहीं सकता। भोगवटा होता है तो उसके शुभाशुभ भाव का, भोगवटा होता है स्वयं के मोह राग द्वेष का, भोगवटा होता है जीव का भाव क्रोध मान माया लोभ का, हास्य रति अरति शोक पे जुगुप्सा का, तीन वेदों का, इच्छा रूप परिणाम, भोगवटा रूप परिणाम होता है जीव की सत्ता में, और जीव के स्वभाव से विरुद्ध परिणाम है। ऐसा परिणाम कर सके ऐसी योग्यता जीव में है। काम भोग विकारी परिणाम, विभाव रूप परिणाम, ये जो काम भोग की कथा
एकपणा से विरुद्ध है। आत्म स्वभाव एक रूप, काम भोग बंधन की कथा अनेक रूप। आत्म स्वभाव शुद्ध, काम भोग बंधन की कथा अशुद्ध। आत्मा का एक रूपपना ध्रुव, काम भोग बंधन की कथा उत्पादवी वाली। आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव, उसका सामर्थ्य एक रूप, लेकिन काम भोग बंधन की कथा वो परिणाम तीव्र मंद होते हैं। एक रूप स्वभाव, उसमें विद्विधता नहीं। काम भोग बंधन की कथा में विद्विधता है। इस स्वभाव से विरुद्ध भाव पर समय, काम भोग संबंधी कथा वो पर समयपना है, पर के लक्ष्य से उत्पन्न होता है, कर्म के उदय में जुड़कर उत्पन्न होता है। स्वस्वभाव से च्युत होने से उत्पन्न होता है, स्वभाव की विराधना के कारण उत्पन्न हुआ है। एक कामभोग बंधन की कथा वो आत्मा का अत्यंत बुरा करने वाली, अनिष्ट करने वाली। एक कामभोग बंधन की कथा का फल अनंत संसार। कामभोग बंधन कथा उसका फल अति दुखरूप, उसका फल आकुलता देने वाला। आत्म स्वभाव के सुख शांति को जलाने वाला कामभोग बंधन कथा। ऐसा होने पर भी क्या कहा? ऐसा होने पर भी पूर्व अनंत बार सुनने में आई है, जो परिणाम तेरे लिए अनिष्ट है, दुखदायक है, आकुलता का कारण है, तेरी आध्यात्मिक सुख शांति को जलाने वाला है, तेरा अहित है, तेरे लिए अनिष्ट है, तेरे लिए अहितकारी है, फिर भी पूर्व का अनंत काल गया, उसमें अनंत बार काम भोग संबंधी कथा सुनी। भोगवटा प्रधानी है ना, ના એ રાગદ્વેષ અનિષ્ટ હોવા છતાં રાગદ્વેષની કથા કરવી ગમે છે, તો પણ એને ગમે છે। જેમ કોઈ એમ કે અમે ભોજન માટે આ વસ્તુ બનાવી, અમે તમને રેસીપી મોકલીએ છીએ, તો પોતે એ વસ્તુ વિષયનો ભોગવટો કર્યો છે અને બીજા પણ એનો ભોગવટો કરે, એની કથા વાર્તા કરે છે કે નહીં? વસ્તુ બનાવતા આકુળતા કેટલી થઈ, એને ભૂલીને પણ ફરી એ કરવામાં રાજી થાય છે।
અનંત વખત કામભોગ બંધનની કથા સાંભળી પાછી એને સવારે ઉઠતા વેત આ ચા પાણી પીધા, નાસ્તો કરવાનો, ખાધું પીધું, પહેર્યું ઓઢ્યું, નાયા ધોયા, બધી ક્રિયા કામભોગ બંધનની કથા છે. આ ક્યાંથી લીધું, કેટલાનું લીધું, અમે તો પહેલી વાર જોયું, અમને મંગાવી દો, અરે આવું તો ક્યાંય નથી મળતું, અમે તો આખી બજાર ફરીને શોધ્યું. क्या कहा? ये कथा बुरा करने वाली है, अनिष्ट करने वाली है, तो पण फिर भी पूर्वी अनंत बार सुनने में आई. सुनने में आई यानी पंचेंद्रिय संधि हो तो ऐसी कामभोग बंधन की कथा होती है, सुनने में आती है. लेकिन एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री हो तो उसको तो कहाँ सुनने का इंद्री भी नहीं. भले उसने शब्द से नहीं सुना, लेकिन एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री ने अनुभव तो किया ना मोह राग द्वेष का, क्रोध मान माया लोभ का. एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री ने भी पर का लक्ष्य किया कि नहीं किया, कर्म के उदय में जुड़ा कि नहीं जुड़ा, उसकी सत्ता में भी मोह राग द्वेष हुआ कि नहीं हुआ, वो मोह राग द्वेष का आकुलता का दुख का वेदन किया कि नहीं किया. शांति से समझे. आचार्य भगवान बहुत गंभीर बात बताते हैं. तेरा अनादि के भव की बात एक दो लाइन में समीक्षा करके बता दी. अनादि काल में अज्ञानी ने किया क्या, काम भोग संबंधी कथा की, आकुलता का वेदन किया, दुखी दुखी हो गया, फिर भी पूर्व अनंत बार सुनने में आई है, अनंत बार परिचय में आई है. ये तो रोज की विषय है. काम भोग बंधन कथा. अज्ञानी को उसके अलावा काम क्या है बताइए. सुनता रू तो परिणमित हुआ नहीं, पर का लक्ष्य कभी छोड़ा नहीं, अनादि से आज तक एक समय ऐसा नहीं है कि कर्म के उदय में जुड़ा नहीं. अनादि से आज तक किया क्या, 5 इंद्रियों और उसके विषय का परिचय किया. पांच इंद्रियों और उसके विषय का परिचय किया और उसके कारण स्वसत्ता में मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ. ऐसा मोह राग द्वेष प्रति समय ऐसा अनंत काल गया तो अनादि से आज तक अनंत बार मोह राग द्वेष को स्वसत्ता में उत्पन्न किया, उसका भोगवटा किया, उसका अनुभव किया.
ये सब तो अनुभव में आ चुका है। इसके अलावा किया क्या बता। अब आगे कहते हैं, केवो छे जीवलोक। ये जीवलोक कैसा है? संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है। ये जो घंटी आती है ना, उसमें दाना डालो तो घंटी के बीच में वो दाना क्या होगा? वो दो चक्कर के बीच में ऐसी भीस लगेगी, ऐसा दुखी दुखी हो जाएगा। ये संसार रूपी चक्र दो चक्कर के बीच में दब गया। तो संसार किसको कहा? पुण्य पाप रूप परिणमन करना। वो पुण्य पाप में ऐसी भीस लगी कि दुखी दुखी हो गया। आगे बताया, निरंतरपने, निरंतर का अंतर, निरंतरपना उसका अर्थ क्या है? एक समय के लिए अंतर छोड़े बिना। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव અને भावरूप अनंत परावर्तन के कारण जिसको भ्रमण प्राप्त हुआ है, समस्त विश्व को एक छत्र राज्य से वश करके, वश करने वाला बड़ा मोहरूपी भूत जिस प्रकार ये जो बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी में क्या है? बैल पर वजन है और उस पर इतना भार है, वो लेके उसको चलना है। ऐसी स्थिति किसकी है? तो कैसी स्थिति अज्ञानी की, हमारी होती है। क्या कहा फिर से? संसार रूपी चक्र, चार गति रूप चक्र, उसको चार गति कह सकते हो। 84 लाख योनि में जन्म मरण कह सकते हो, उसको पंच परावर्तन कह सकते हो। ख्याल में आता है? जो संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है, चार गति के बीच में है। कैसा है चार गति में? चार गति में रहा तो आत्मा की सत्ता में मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ, आकुलता उत्पन्न हुई, दुख उत्पन्न हुआ।
मोह राग द्वेष की उत्पत्ति के कारण आत्म स्वभाव तिरोभूत हो गया। मोह राग द्वेष के कारण द्रव्य कर्म का बंध हुआ, फिर उसका उदय, फिर उसमें जुड़ना, फिर मोह राग द्वेष करना, फिर नया कर्म का बंधन, फिर उदय आना, फिर जुड़ना, फिर मोह राग द्वेष करना, निरंतर प्रति समय दुखी दुखी दुखी। पंच परावर्तन की बात बताई तो उसमें द्रव्य का अर्थ है पुद्गल परमाणु। विश्व का एक भी पुद्गल परमाणु ऐसा नहीं है कि जिसके साथ तूने स्पर्श नहीं किया। द्रव्य परावर्तन का अर्थ है इस जगत में जितने जितने यानी अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है, उसमें से एक भी परमाणु ऐसा नहीं है कि जिसके साथ तूने संबंध नहीं किया। जो वर्तमान में जो रजकण तुझे मिले, ये शरीर के परमाणु हो, सत्ता में पड़े हुए कर्म के परमाणु हो, तेजस शरीर के परमाणु हो, औदारिक शरीर के परमाणु हो, कार्बन वर्गना के परमाणु हो, के बाह्य में मिले परिग्रह सोना चांदी जमीन मकान उसके परमाणु हो, वो सभी परमाणुओं के साथ तूने अनंत अनंत बार संबंध किया है। क्योंकि अनादि से आज तक तेरा अनंत भव हुआ है। ये जो तुझे शरीर मिला, उसका रूप मिला, वो परमाणु उसके साथ भी तू अनंत बार संबंध में आया है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई बात अपूर्व नहीं है। अपूर्व बात तो क्या है, तो कि जो पूर्व नहीं किया ऐसा कुछ कर तो वो अपूर्व कहलाएगा। अनादि से आज तक सिर्फ एकमात्र शुद्धात्मा उसकी अनुभूति नहीं की, वो तेरे लिए अपूर्व है। इस शुद्धात्मा की अनुभूति, उसका वेदन करना, उसका भोगवटा करना, वो तो स्वसमयपना है। वो दुखदायक नहीं, सुखदायक है। वो विसंवाद खड़ा नहीं करता। ये तेरा बुरा करने वाला नहीं है, तेरे लिए अनिष्ट नहीं है, तेरे लिए दुखदायक नहीं है। तूने अनंत काल में अनंत वक्त पुद्गल का लक्ष्य किया, उसके साथ संबंध में आया, उसके साथ बंधन भी किया। ऐसा तो तूने अनंत बार परावर्तन किया है।
ये द्रव्य परावर्तन है। क्षेत्र परावर्तन ये लोकाकाश 14 ब्रह्मांड रूप क्षेत्र है। ये लोकाकाश ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पातालोक, असंख्यात प्रदेशी, ये लोकाकाश का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि जहां तेरा अनंत बार जन्म न हुआ हो, अनंत बार वहां तेरा मरण न हुआ हो। एक एक प्रदेश पर तूने अनंत अनंत बार जन्म लिया, अनंत अनंत बार मरण किया। ये जो कुंकुंदाचार्य देव ने अष्टपाहुड़ लिखा है उसमें एक भाव पाहुड़ है। तो पाहुड़ का नाम सुनकर ही मालूम पड़ता है कि उसमें क्या कहने चाहते हैं। भाव पाहुड़, जीव के भाव का वर्णन। जीव ने ऐसे ऐसे भाव किए, अनंत बार रानी मिली, अनंत बार नग्न दिगंबर मुनि भी हुआ, अनंत बार अज्ञारंग नवपूर्व का अभ्यास भी किया, फिर भी जो आनंद स्वरूप है, आनंद जिसका स्वभाव है, जिसका आनंद रूप सामर्थ्य अनंत है, ऐसे त्रिकाड़ी लक्ष्मीवान तेरा त्रिकाल शुद्धात्मा, उस पर तूने आज तक दृष्टि नहीं की, उसमें तेरा उपयोग एकाग्र नहीं हुआ, ये कार्य नहीं किया, वो अपूर्व है। वो कार्य करने जैसा है, पूर्व कभी किया नहीं। द्रव्यलिंग धारण करके लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर तेरा जन्म हो चुका है, अनंत अनंत बार। ऐसा कोई लोकाकाश का क्षेत्र नहीं तेरे परिचय में नहीं आया। तेरे संसार की कथा बहुत लंबी है। तो पहले द्रव्य परिवर्तन बताया, उसके बाद क्षेत्र परिवर्तन, अब काल परिवर्तन। काल का दो प्रकार है, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी। उत्सर्पिणी का काल 10 क्रोड़ी सागरोपम होता है। अवसर्पिणी का काल भी 10 क्रोड़ी सागरोपम होता है। एक सागर का अर्थ होता है असंख्य अबज वर्ष। ऐसा जो उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का काल आज तक अनंत बार उत्सर्पिणी अवसर्पिणी आ चुका। उसके प्रत्येक समय पर तूने जन्म मरण किया है। ऐसा जन्म तेरा अनंत बार हुआ है, फिर भी इतना भव किया, फिर भी
आत्मा का अनुभव नहीं किया, शुद्धात्मा का लक्ष्य नहीं किया, शुद्धात्मा को विषय नहीं बनाया, शुद्धात्मा की सन्मुख नहीं हुआ, शुद्धात्मा में एकाग्र नहीं हुआ, शुद्धात्मा का ध्यान नहीं किया, मोह राग द्वेष रहित आत्मा का शुद्ध स्वभाव, वितराग स्वभाव, अनंत ज्ञान दर्शन स्वभाव, अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक, अनंत शक्तिवान तारू स्वरूप, तेरा स्वरूप, उसका परिचय नहीं किया, उसकी कथा नहीं सुनी। किसी को ये कहने का मन हो जाएगा कि भाई हम तो अनंत बार तीर्थंकर की सभा में गए हैं और आप कहते हैं कि कभी ये बात सुनी नहीं। सुनने का अर्थ क्या? सुनकर तूने भावभाषण किया तो सुना कहलाएगा। भगवान की वाणी सुनकर तूने क्या आत्मा का अनुभव किया? भगवान के पास स्वभाव शब्द सुनकर तेरी दृष्टि और उपयोग ने स्वभाव को ग्रहण किया तो तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनी ऐसा कहने में आएगा। आत्मज्ञान क्या है, आत्मदर्शन क्या है, आत्मा का चारित्र क्या है, आत्मा की प्रतीति कैसी होती है, भावश्रुत ज्ञान में आत्मा का स्वरूप कैसा जानने में आता है। आत्मस्थिरता करने से अतीन्द्रिय सुख का आह्लाद कैसा आता है, ऐसा तूने अनुभव कभी नहीं किया। अनंत काल गया, उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी, एक एक उत्सर पीढ़ी का काल 10 करोड़ा सागरों पम, एक सागर का असंख्यात अबज वर्ष, इतना लंबा काल उत्सर पीढ़ी का, इतना लंबा काल अवसर पीढ़ी का। ऐसे एक एक उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी में तेरा अनंत अनंत बार जन्म होता है। वहाँ काम भोग बंधन की कथा में तू जुटा हुआ है और काम भोग बंधन की कथा से दुख का वेदन किया, फिर भी तुझे आत्म स्वभाव का लक्ष्य करने का भाव उत्पन्न नहीं हुआ। तो समय हेतु पूरा हुआ। कल आगे चलेगा। ચોક્કસ ચોક્કસ ઓકે. કોણ જય બોલાવે છે? હા હા. ગુરુદેવે બધું, માતાજીએ બધું આપ્યું છે જેવું કે હા.
ગુરુદેવ માં હમ